Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have completed chapter number 2, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye from our Science NCERT book Curiosity of Standard 8. We have completed the explanation part of this chapter in part 1 and part 2. Today we are going to start with the summary and the question answers of this chapter. The invisible living world beyond our naked eye. This chapter tells us about the microorganisms. The microorganisms are small organisms, or you can say very tiny organisms that are not visible to our naked eye. We can only see them under the microscope. They are either unicellular or multicellular. For example, we have learned that bacteria, protozoas are unicellular, whereas fungi it can be unicellular or multicellular, while plants and animals are multicellular. We have also learned about cell, that cell is a basic unit of life. So today we are going to study about the summary and the back exercise of this chapter. So let's proceed further with the summary and then we will move to the back exercise, that is question answers. Summary. Microorganisms are small sized organisms and are not visible to the unaided eye. So as we have learned, the micro means very small. So these are the organisms which are living and they are very small, and due to their size they are not visible under the unaided eye, means naked eye. We can only see them under the microscope. They can live in all kind of environments and even in the bodies of plants and animals. So the microorganisms, they live in all kind of environment and in the body of plants and animals. They are either unicellular or multicellular. Unicellular means single cell, they contain single cell, they are made up of single cell, and multicellular means they are made up of many cells. So bacteria and protozoa are unicellular, while fungi can be unicellular or multicellular, while plants and animals are multicellular. The cell is the basic unit of life. The body of a living organism is made up of cell. So when we talk about cell, our body is made up of cell. A cell contains various components which help the organisms perform their function and survive. So it is the cell which contain various type of components और parts which help the organism. वो क्या करता है, एक organism को help करता है ताकि वो अलग अलग तरह के functions जो है वो कर सके, perform कर सके और survive कर सके. A typical cell is bonded by a cell membrane filled with cytoplasm and contains a nucleus. तो सेल के तीन पार्ट्स हैं. एक है सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर जो बॉडी है सेल की, वो बाउंड्री जो है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और बीच में जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. कई जैसे प्लांट्स में या फंगल या बैक्टीरियल सेल्स में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन होती है बाउंड्री, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बाउंड्री जो है वो कई प्लांट्स में, कई सेल्स में होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं. बैक्टीरिया लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता. Cells differ in shape and size. Their shape is related to the function performed by them. Cells जो है उनकी जो shape है वो size है, वो हर cell की अलग अलग तरह से होती है और differ करते हैं एक दूसरे से shape में और size में. Their shape is related to the function performed by them. उनकी जो shape है वो उनके जो वो function perform करते हैं उससे related होती है. Bacteria, fungi and protozoa are different kind of microorganisms. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ. वायरसेस आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है साइज में, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म.
तो when they enter a living body, at that time they reproduce, so that is why they are different from the other microorganism, क्योंकि जब तक ये किसी की लिविंग बॉडी में नहीं ट्रांसफर होते तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करते. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें बेनिफिशियल, हमें बेनिफिट भी देते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट. कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद उसको डिकम्पोज किस में करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में, और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. Some microorganisms reside in root nodules of legumes such as peas, beans and lentils. कई microorganisms जो हैं वो कहाँ रहते हैं, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स जैसे कि पीज, बीन्स और लेंटिल्स. दे ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. सो एयर से, एनवायरनमेंट से जितनी नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करके वो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. Yeast are fungi which are used in process of making breads, cakes, pastries, idlis, dosa and bhatura. So yeast is a micro organism which belong to the group of fungi. ठीक है, एंड इनको जब यूज़ किया जाता है किसके लिए, जब ब्रेड बनाई जाती है, केक बनाया जाता है, पेस्ट्री, इडली, डोसा और भटूरा. क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो किसी भी बैटर को फ्लफी करने में और उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं. Lactobacillus is used in curd formation at home and fermentation process in food industry. तो lactobacillus बैक्टीरिया जो है वो क्या हेल्प करता है, कर्ड फॉर्मेशन में जो हम घर पे बनाते हैं. ठीक है, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री, और फर्मेंट करने में हेल्प करता है किसी भी फूड इंडस्ट्री में. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. Question number 1. Various parts of a cell are given below. Write them in appropriate places in the following diagram. अब आपको यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हैं, देखो यहाँ न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड. ठीक है, तो कौन से सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होते हैं, कौन से प्लांट सेल में होते हैं, कौन से एनिमल सेल में होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, तीनों सेल में होते हैं, ये आपको लिखना है. ठीक है, देखिए एनिमल सेल में सिर्फ न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होती है. ये भी हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी होता है बीच में, क्लोरोप्लास्ट इसलिए होती है क्योंकि वो क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस अपना फूड जो है वो बना सकते हैं. फिर उसके बाद सेल वॉल भी जो है वो प्लांट सेल में होती है. बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है और न्यूक्लियोइड होता है. तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये सब में होता है. ठीक है, सारे सेल्स में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन. आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्ड देम ए एंड बी. आनंदी ने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली जिसको ए और बी मार्क करा. शी पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब. दोनों टेस्ट ट्यूब में उसने 2 स्पून जो है वो शुगर सोल्यूशन डाल दिया. इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ यीस्ट. बी में उसने यीस्ट भी जो है वो डाल दिया. देन शी अटैच टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. अब दोनों टेस्ट ट्यूब पे उसने जो है वो बलून्स लगा दिए, पर वो फूले हुए नहीं थे पूरे तरीके से. शी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट. तब सनलाइट से दूर एक उसने उसको वार्म प्लेस में रख दिया. What do you predict will happen after 3 to 4 days? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. उसने 3 या 4 दिन बाद क्या देखा कि जो बी टेस्ट ट्यूब पे जो बलून लगाया था ना वो फूल गया. What could be the possible explanation for this? अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी फिल्ड द बलून विद वाटर वेपर. क्या इसके अंदर वाटर जो इवेपोरेट हुआ, गर्म पानी था, तो क्या ऐसा हुआ कि कुछ
इसके इसके अंदर जो है वो वाटर वेपर की वजह से बलून फूल गया, या द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपैंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब व्हिच इन्फ्लेटेड द बलून। जो अंदर का वार्म एटमॉस्फेयर था, गर्म एटमॉस्फेयर था, उसकी वजह से जो ये बलून था ये फूल गया था। Yeast produced a gas inside the test tube B which inflated the balloon. Yeast जो डाली थी उसकी वजह से एक गैस निकली जिसने कि टेस्ट ट्यूब बी में जो बलून था वो फुला दिया था। Sugar reacted with warm air which produced gas eventually inflating the balloon. जो शुगर थी उसने रिएक्ट करा था वार्म गैस के साथ या एयर के साथ, जिससे कि एक गैस प्रोड्यूस और बलून फूल गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला कि यीस्ट जो है ना उसकी वजह से जो है वो बलून फूला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस हुई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे कि यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंगी। It respire and break down food to release energy. It releases carbon dioxide gas which gets trapped in the balloon and causes inflation. तो जब भी यीस्ट हम किसी चीज़ में डालते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो बलून में ट्रैप हो गई, ठीक है, बंद गई, और उसके बाद वो इन्फ्लेट हो गया। She took another test tube, one fourth filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? अब उसने क्या किया, उसने एक और टेस्ट ट्यूब और उसको उसने आधा 1/4 लाइम वाटर से भर दिया, और जब उसने टेस्ट ट्यूब बी से बलून को हटाया तो जो उसके अंदर गैस थी वो निकलने नहीं दी, एस्केप होने नहीं दी। और उसने जो टेस्ट ट्यूब नई ली थी जिसमें उसने लाइम वाटर डाला था उसके साथ बलून को अटैच कर दिया, ठीक है, फिर उसको शेक करके देखा। अब वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है? आनंदी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट विच गैस इज रिलीज्ड बाय द यीस्ट। वो ये चाहती है ढूंढना कि गैस कौन सी रिलीज हुई है जो यीस्ट से हुई है। The gas which is trapped in the balloon when released in lime water makes the lime water milky. जो भी गैस रिलीज हुई है बलून के अंदर, अगर CO2 है तो इससे क्या होगा, लाइम वाटर जो हो जाएगा वो मिल्की हो जाएगा। When lime water turns milky, the gas produces carbon dioxide. अगर उसमें लाइम वाटर मिल्की हो गया तो इट मीन्स कि जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली शी वांटेड टू फाइंड आउट कि ये कौन सी गैस रिलीज हुई है यीस्ट से। Question number 3. A farmer was planting wheat crops in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops. In the neighboring field, another farmer was growing bean crop, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crop. Can you think of the reasons? एक फार्मर है जिसे वीट क्रॉप जो है वो ग्रो करा अपनी फील्ड में, और उससे नाइट्रोजन रिच जो है वो फर्टिलाइजर डाला ताकि उससे अच्छी जो है वो अच्छी यील्ड आए क्रॉप्स की। पर उसी के साथ एक और फील्ड थी जिसमें फार्मर ने क्रॉप्स को, बीन क्रॉप को ग्रो किया हुआ था, पर उसने वहाँ पर जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है वो नहीं डाला। क्या कोई इसके पीछे आप रीजन बता सकते हो? रूट्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि बीन्स हैव रूट नोड्यूल दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना बीन्स वाले, इनके अंदर ऑलरेडी इनकी रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है ना, ये आपको मैंने अभी बताया था, ये ट्रैप करता है नाइट्रोजन, कहाँ से, एनवायरनमेंट से या एयर से, और उसको कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए ताकि वो उसको यूज कर सके। So these bacteria trap the nitrogen from the air and convert it into a form that plants can use. This naturally increases the level of nitrogen in the soil, and that's why these plants do not need any nitrogen fertilizer. इसीलिए इनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी ये प्लांट्स लगते हैं जैसे बीन्स हो गया, पीज हो गया, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में जो है ना, रूट नोड्यूल्स में ऑलरेडी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से या एयर से ट्रैप कर लेता है और उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि वो प्लांट इजीली यूज कर सके। ठीक है, तो इस वजह से प्लांट के पास ऑलरेडी
नाइट्रोजन का लेवल जो है सॉइल में बढ़ जाता है, इस वजह से इन प्लांट्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 4. 4 is Snehal dug 2 pits A and B in her garden. In pit A, she put fruits and vegetable peels and mixed it with dried leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? अब स्नेहल ने क्या किया, 2 पिट्स लिए, उस ए और बी। ए में क्या किया, फ्रूट और वेजिटेबल पील्स डाल दिए और साथ में उसने जो है उसको ड्राइड लीव के साथ मिक्स कर दिया। पिट बी में उसने क्या किया, उसने सेम वेस्ट डाला, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल पील्स डाले, बट इसमें ड्राइड लीव्स नहीं डाली, और दोनों पिट्स को जो है वो सॉइल से, मिट्टी से कवर कर दिया, और 3 हफ्ते बाद उसको ऑब्जर्व किया। तो वो क्या ढूंढना चाहती है, क्या टेस्ट करना चाहती है? Snail is trying to test how the presence of dried leaf affect the process of decomposition process faster. On the other hand, in pit B, without dried leaves, the waste remains wet for a long time. This makes the process of decomposition slow. तो वो ये टेस्ट करना चाहती है कि ड्राइड लीफ जो है उसकी प्रेजेंस से जो है क्या होगा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। जहाँ भी ड्राइड लीव होगी वहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल पिट बी में ड्राइड लीव्स नहीं थी, तो वेस्ट जो है वो बहुत टाइम के लिए गीला रह गया और इस वजह से डिकम्पोजिशन वहाँ पर स्लो हो। क्वेश्चन नंबर 5. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको यहाँ पे हिंट जो है वो रीड करके ऑर्गेनिज्म बताने। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। I make cake, bread soft and fluffy. Yeast. I live in roots of pulse crops and provide nutrients for their growth. Rhizobium bacteria. Question number 6. Devise an experiment to test that microorganisms need optimal temperature, air and moisture for their growth. एक एक्सपेरिमेंट आपने डिवाइस करना है, किस चीज़ के लिए, ये पता लगाने के कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको एक टेम्परेचर चाहिए, एयर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर ऑप्टिमल मतलब मिला जुला टेम्परेचर, एयर हवा, मॉइस्चर। देखिए हमने 3 जार लिए ए बी एंड सी। एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, पुट कुक्ड राइस, ए में हमने कुक्ड राइस डाले, कवर देम इन वार्म प्लेस, और उसको कवर करके वार्म प्लेस पे रख दिया। हमने ऑब्जर्वेशन क्या करी कि नो ग्रोथ एज नो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मॉइस्चर है ही नहीं, ठीक है, वो गीले है ही नहीं। बी, स्प्रे अ लिटिल वाटर ऑन द राइस टू मेक इट मॉइस्ट, कवर एंड कीप इन वार्म प्लेस। अब आपने जो राइस बनाया है उस पर थोड़ा सा पानी डालो ताकि उसको हल्का सा हम वेट कर सके, और फिर उसको कवर करके एक वार्म प्लेस पे रख दो। शो साइंस ऑफ माइक्रोब्स एज दिस जार हैज ऑप्टिमल कंडीशंस। अब इस जार में जहाँ पर हमने हल्का सा पानी डाला है ना, उस जगह पर हमें जो है वो ग्रोथ नज़र आएगी माइक्रोब्स की, ठीक है। सी, स्प्रे अ लिटिल वाटर एंड कीप इट इन कोल्ड कंडीशन सच एज फ्रिज। फ्रिज में रखने से क्या होगा, उनकी ग्रोथ और स्लो हो जाएगी, वेरी स्लो ग्रोथ बिकॉज द टेम्परेचर इज लो इन द फ्रिज। लो टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे ये ग्रो नहीं कर सकते। ये ग्रो कब कर सकते हैं, जब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर हो, ऑप्टिमल कंडीशंस हो, जैसे कि ऑप्टिमल एयर चाहिए, मॉइस्चर भी ऑप्टिमल ही चाहिए, राइट। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। Question number 7. Take 2 slices of bread, place one slice in the plate near the sink, place the another slice in the refrigerator. Compare after 3 days, note your observations, give reason for your observation. 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी है, एक स्लाइस को आपने सिंक के पास रखना है एक प्लेट में, और एक को आपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखना है। अब इनको कंपेयर करना है 3 डेज के बाद और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। After 3 days, the bread slice placed near the sink shows the growth of microbes such as fungus, while the bread which is placed in the refrigerator remain the same. तो 3 दिन के बाद जो ब्रेड स्लाइस आपने सिंक के पास देखी,
रखी हुई थी, उसमें जो है आप देखोगे कि माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है वो नज़र आ रहा है, उसमें फंगस लग रही है, ठीक है। वाइल जो आपने फ्रिज में रखी थी उसमें नहीं लगी है, वो सेम है ब्रेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, इसलिए वो माइक्रोब्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। Microorganisms like fungi grow faster in warm and moist conditions which are present near the sink. तो सिंक के पास वार्म है, वार्म मतलब थोड़ी सी गर्माहट है, और मॉइस्ट भी है, मॉइस्चर भी है। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी ये वहाँ जल्दी ग्रो करते हैं, जो नियर द सिंक के पास जो कंडीशन है उसमें वार्म और मॉइस्ट में। Question number 8. A student observes that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be the two possible explanation for this observation? एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम दही को बाहर रख देते हैं, ठीक है, तो वो खट्टा हो जाता है। अब इस चीज़ के लिए, इस ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? The curd contain lactobacillus bacteria which produces lactic acid which when left out for a day makes the curd sour. इसके अंदर जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो है लैक्टोबैसिलियस, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और अगर इसे एक दिन के लिए भी आप बाहर छोड़ दो तो कर्ड जो है वो खट्टा हो जाता है। These lactobacillus bacteria grow well in warm conditions, resulting in the production of more acid, making the curd sour. ये जो lactobacillus बैक्टीरिया है, अगर हम बाहर रख दें दही को तो वार्म कंडीशन में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और इस वजह से जो है वो कर्ड जो है वो सोर खट्टी हो जाती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. Observe the setup given in figure 2.15 and answer the following question. यहाँ देखिए, यहाँ एक सेटअप दिया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ए में आपको वार्म शुगर सोल्यूशन प्लस यीस्ट मिल रहा है, यहाँ बी में क्या है, लाइम वाटर। व्हाट हैपन्स टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए? फ्लास्क ए में शुगर सोल्यूशन को क्या होगा? In flask A, the yeast undergoes the process of fermentation, breaks down the sugar molecules. During this process, it produces carbon dioxide and some alcohol. तो फ्लास्क ए में यीस्ट जो है वो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन चलेगी, ठीक है, जिससे जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो उसको वो तोड़ देगी, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज होंगे, प्रोड्यूस होंगे। What do you observe in test tube B after 4 hours? 4 घंटे बाद आप अगर टेस्ट ट्यूब बी देखोगे तो उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? Why do you think this happened? The lime water present in test tube B turns milky after 4 hours. ठीक है, 4 घंटे बाद जो लाइम वाटर था टेस्ट ट्यूब बी में वो मिल्की हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में जो गैस प्रोड्यूस हुई है यीस्ट की वजह से, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है। It happens because the carbon dioxide produced in flask A passes into test tube B. This causes the lime water to be milky. Then question number 3 is, what would happen if yeast was not added in flask A? अगर फ्लास्क ए में हमने yeast ऐड नहीं की होती तो क्या होता? If yeast is not added to flask A, then no fermentation occurs, so carbon dioxide will not be produced. As a result, the lime water present in test tube B would not turn milky. ठीक है, क्योंकि अगर हमने यीस्ट ही नहीं डाली तो कोई फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हुई तो क्या होगा, जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब बी में वो मिल्की नहीं होगा। ठीक है, तो लाइम वाटर को अगर हमें मिल्की करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर के साथ मिलानी पड़ेगी या उससे पास करनी पड़ेगी ताकि वो मिल्की हो जाए। बट यहाँ पर क्या है, यीस्ट जो है अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी और लाइम वाटर भी फिर टेस्ट ट्यूब बी में जो है वो मिल्की टर्न नहीं करेगा। So with this we have come to the end of the question answers as well as towards the end of my video. If you are liking my video, please do subscribe my channel and like my videos. Please do share your valuable comments with me. Now I'll come up soon with the important points and important
extra questions of this chapter. So stay tuned to my channel. Thanks for watching. Thank you.